leadership and guidance is inspired all of us. A big round of applause, ladies and gentlemen, for Sri Vijay Goyal ji to guide us through this special occasion and add his energy and enthusiasm to the proceedings. We are honored to have with us a dynamic personality, someone who brings experience, charisma, and a touch of humor where he goes. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Honorable Minister for Art, Culture and Tourism, Government of NCT of Delhi, Sri Kapil Misra ji. Thank you so much. Thank you so much, sir, for your gracious presence today on this occasion. Among the other dignitaries, ladies and gentlemen, we have with us Major General Rajpal Punia ji, Dr. Ram Kumar ji, Advisor, World Bank, Tarun ji, Vidyan Goyal ji, friends from media, cast and crew of this film, ladies and gentlemen. अब मैं गुजारिश करता हूँ इस फिल्म के डायरेक्टर अजीत सिन्हा जी और मिस्टर हेमंत जी से कृपया स्टेज पर आएं और अजीत सिन्हा जी. Ladies and gentlemen, I would like to mention the name of the cast and crew of this film. Cast is Aham Sharma. Aham कृपया खड़े हो जाएं. Aham Sharma, Sai Tamhankar, Adarsh Barik, Pallavi Singh, Govind Pandey ji, दुर्गेश कुमार जी, पंचायत के जाने माने चेहरा हैं, सिद्धांत गोयल जी, रूने प्यांते जी एंड यस. क्रू है अजीत सिन्हा जी, डायरेक्टर अजीत सिन्हा जी, रागिनी गुंजन जी क्रिएटिव डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर वीरेंद्र भल्ला जी, सहरोज अली खान जी, अजीत सिन्हा जी एंड रागिनी गुंजन जी, राइटर हैं राज वर्मा जी, म्यूजिक कंपोजर जाना माना बॉलीवुड का चेहरा विपिन पाटवा जी, लिरिसिस्ट डॉक्टर सागर, एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर सुरेश सावंत जी, कोरियोग्राफर विष्णु देवा जी, प्रोडक्शन डिजाइनर मार्तन मिश्रा जी, एडिटर इरफान इसाक जी, PRO उत्तम सिन्हा जी. नाउ I would request lead actor Aham Sharma, Pallavi Singh ji, Adarsh Barik to take position on the dais along with the director of the film, Sri Ajit Sinha ji. Moving ahead of this program, ladies and gentlemen, I would request Director Ajit Sinha ji and Mr. Hemant ji kindly to start film Marhut ritual clap ceremony. Mr. Hemant ji, please join us. एक बार जोरदार तालियां.
देवियों और सज्जनों, कल ही 2 अक्टूबर का दिन था। महात्मा गांधी जी के जीवन को समर्पित यह दिन। आगे बढ़ने के पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा इस महापुरुष के बारे में। न तन पे आडंबर न जीवन में शोर, न तन पे आमंदर न जीवन में शोर, सिर्फ सत्य हिंसा का था गूंजता शोर। गांधी का व्यक्तित्व था जैसे गंगा की धार, पावन सरल और सबका हो उद्धार। गांधी जी का चरखा आप सबने देखा होगा। कहते हैं चरखा चलाना केवल धागा काटना नहीं, ये ईमान की राह पे खुद को साधना है। चरखा नैतिकता की बुनियाद है, आत्मनिर्भरता का सार है। चरखा कहता है सत्य से ही जीवन स्वीकार है। Ladies and gentlemen, Kaisam-Kas movie is distinguished by its audacious voice. Gandhiji's Charkha, evolving from a historical artifact to the film's moral conscience forever, reminding audiences that they all shall imbibe human values in life. Gandhi's principles, truth, simplicity, and non-violence become the mirror against which the characters greed, betrayal, and they are measured. Now let us talk about the poster and the film where Charkha has been featured prominently. A symbol of Gandhian philosophy, self-reliance and ethical living. But here is the twist. The characters of Kaisam-Kas are far from following Gandhian ideals and non-violence. The moment we have all been waiting for the official unveiling to the poster of the movie Kaisam-Kas, which you all could see on the screen. अब मैं गुजारिश करता हूं इस फिल्म के प्रोड्यूसर सहरोज जी से कृपया आएं और इस प्रोजेक्ट के विजन के बारे में अपने इंसाइट शेयर करें। वीरेंद्र भल्ला जी, सहरोज जी ये प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, और ऐसी क्या वजह रही, क्या इंसाइट रहा इनका जो कि इस मूवी को आगे ले जाने में और इस मूवी के थीम को बनाने में क्या इनका विजन था। सहरोज जी। Thank you so much guys, thank you so much. I am very thankful to Goyal sir, my favorite sir, Kapil sir, कि हम लोग आज हम यहाँ पर सब लोग आप यहाँ पर हैं। हम बॉलीवुड से हैं तो हमारे लिए ये जो शहर है वो थोड़ा सा सेकंड सिटी में आता है, लेकिन जिस तरीके से आज अपनापन हमें लगा है सर के, हम बहुत बहुत आभारी हैं और बहुत थैंकफुल हैं कि ये हमें अपना शहर लगने लगा। आज आप सब लोग आए तो वी आर वेरी हैप्पी टू सी यू हियर। And this movie basically we are not actually right now revealing on that what is the subject basically, but this is something which is going on right now in the world. Like, you know, we all are running for money, we all are running for fame, and we are doing everything, you know, we are breaking the law, we are whatever we are doing, like, you know, sometimes जैसे for example हम बहुत जल्दी पैसे वाले और फेम में आना चाहते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा जो सब्जेक्ट है वो ऐसा दिखाता है कि आप हम सब जैसे हम लोग कभी टैक्सेस में कुछ सोचते हैं कि हम बचा लें, रूल्स को कुछ हाइड कर लें, या शॉर्टकट के लिए हम कैसे आगे बढ़ें, क्योंकि हर ग्लैमर ने इतना ज़्यादा इंस्पिरेशन दे दी है दुनिया को कि एवरीवन वांट अ लग्जरी लाइफ। तो हमारा सब्जेक्ट बहुत साइलेंट सा है और इसमें एक बहुत साइलेंट मैसेज है गांधी जी के द्वारा कि हम जब भी कुछ काम कर रहे होते हैं जिसमें वी आर प्लेइंग विद द लॉ और वी आर डूइंग अ शॉर्टकट फॉर आवर सक्सेस, हमें कहीं ना कहीं ये खुद रियलाइजेशन होता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। बेसिकली वी नो द रियलिटी कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। तो बेसिकली ये है कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं वो दे ऑल आर रनिंग फॉर मनी, फॉर द कार्स, फॉर लग्जरी, टू बिकम द बिलियनर्स एंड ऑल, बट एंड ऑफ द डे दे रियलाइज that we are going against what Gandhi ji has said. मनोरंजन नहीं, एक दर्पण है, विद्रोह है और कई बार एक खुलासा भी है। इस कहानी की प्रेरणा मुझे उस सवाल से मिली जो वर्षों से मुझे परेशान करता था। जब गांधी जी का चेहरा हर नोट पे छपा है तो क्या हम उनके मूल्यों को भूल चुके हैं? हमारी फिल्म
4 साधारण युवकों की कहानी है जो असफलताओं से टूटा जीवन लेकर विदेश में सपनों का पीछा कर रहे हैं। उन्हें अचानक ऐसी दौलत मिलती है जो उनकी नहीं है। बिना कोई अपराध किए लालच उनकी दोस्ती को दुश्मनी में बदल देता है। धोखे और विश्वासघात के इस खेल में उनका जीवन ही नहीं बल्कि पूरे समाज की सच्चाई और एकता के मूल्य बिखर जाते हैं। और इस अराजकता में हमने एक अनोखा कथावाचक चुना है, गांधी का चरखा। कभी आज़ादी का प्रतीक, अब भूला हुआ अवशेष। वही चरखा उनकी गिरावट को देखता है और हमें प्रश्न पूछता है, क्या गांधी सिर्फ मुद्रा पर छपी एक तस्वीर रह गए हैं या जीवन जीने का भूला हुआ मार्ग? ये फिल्म आज के संघर्षों और हमारे इतिहास की शाश्वत आवाज़ को जोड़ने का प्रयास है। एक चेतावनी भी है और आईना भी, हमें याद दिलाने के लिए कि मूल्यों के बिना पैसा सिर्फ कागज है और विवेक के बिना आज़ादी सिर्फ एक छलावा। मैं अपने कलाकारों, पूरी टीम, निर्माताओं का आभारी हूँ जिन्होंने इस दृष्टिकोण पर विश्वास किया और हमारे माननीय अतिथि श्री विजय गोयल जी, मिश्रा जी, उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। साथ में माननीय अतिथियों और मीडिया का धन्यवाद करता हूँ कि आप सब इस आरंभ के साक्षी बने और हम केवल एक कहानी नहीं सुना रहे हैं बल्कि आने वाले कल के लिए संवाद भी बोल रहे हैं। थैंक यू। धन्यवाद सिन्हा जी। टाइम की पॉजिटिव है और माननीय मंत्री जी का कमिटमेंट भी है, तो मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री जी से कृपया इस मौके पे अपने इंसाइट शेयर करें और अपना विजन रखें। माननीय मंत्री जी। बहुत बहुत आभार। और सबसे पहले तो आभारी हूँ आदरणीय श्री विजय गोयल जी का। समाज का ऐसा कोई पहलू नहीं है और समाज का ऐसा कोई अंग नहीं है जो विजय जी के व्यक्तित्व से अछूता रह गया हो। बहुत आपका आभार उस सबने मेरे को भी जोड़ने के लिए अपने साथ। इस वक्त गांधी दर्शन का जो कार्य आदरणीय विजय जी कर रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद गांधी जी के सिद्धांतों और मूल्यों के जिस लक्ष्य के लिए संस्थान की स्थापना की गई थी, अब संस्थान उन लक्ष्यों के लिए सच में काम कर रहा है। बहुत लंबा राजनीतिक और सामाजिक अनुभव है विजय जी का और एक तरह से दूर से कोई अब गुरु को देख के जिस प्रकार से सीखता है, मैंने पिछले 2 दशकों में विजय जी के सामाजिक और राजनीतिक कार्यों को देखकर कुछ छोटा छोटा सीखने की कोशिश की है। बहुत आपका आभार और बहुत शुभकामनाएं इस फिल्म के सभी टीम को, कलाकारों को, अजीत जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा ये मानना है कि फिल्में ही इस वक्त संवाद का, चरित्र निर्माण का, राष्ट्र में किस प्रकार की भावना लोगों में होगी उसका सबसे बड़ा इस वक्त अगर कोई साधन है तो फिल्में हैं। एक छोटा सा अगर उदाहरण ही देखें तो आज हम लोगों को कोरिया के बारे में पता हो या ना पता हो, लेकिन हमारे बच्चों को सब कुछ पता है। कोई पिछले 20 पीढ़ियों में कोई कोरिया नहीं गया, लेकिन बच्चों को एक एक शहर का नाम पता है, उनका खाना पता है, उनका कल्चर पता है और आकर्षण है कि जाना है, देखना है। ड्रीम डेस्टिनेशन बनता जा रहा है केवल और केवल फिल्मों के माध्यम से, सीरियल के माध्यम से, इसके अलावा कुछ नहीं है। अमेरिका का जो भी आर्थिक महाशक्ति के रूप में भूमिका हो वो एक अलग है, लेकिन लोगों के मानस में जो उसकी छवि है वो उनकी फिल्मों के माध्यम से ही बनी है। और भारत में भी अब वो समय आ गया, भारत में फिल्मों ने नकारात्मक भूमिका भी निभाई है समाज को कमजोर करने की, समाज के आगे बढ़ने के विरोध करने की। जो भी शक्तिशाली हो, जो भी इंडस्ट्री चला रहा हो, जो भी पूंजी बना रहा हो, उसके खिलाफ बहुत फिल्में बनी है। एक दौर आया इस देश में, एक तरह से जो भी अच्छा काम कर रहा है उसको विलन बना देना और जो कुछ भी नहीं कर रहा है वही नायक बन गया। लेकिन ये बहुत बड़ा दौर रहा है, कॉलर खुले हुए हैं, शर्ट खुली हुई है, वो नायक है, और जिसकी इंडस्ट्री है, जिसका बिजनेस चल रहा है, जो लोगों को नौकरी दे रहा है, वो खलनायक है। ऐसा 20-30 साल लोगों की मानसिकता इस देश में बनाई गई
लेकिन पिछले कुछ वर्षों से फिल्मों ने राष्ट्रीयता की भावना के ऊपर काम किया है, और उसमें इस प्रकार की एक फिल्म लेकर आना अपने आप में बहुत ही प्रशंसा का कार्य। बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी पूरी टीम को। गांधी जी के जो सिद्धांत हैं वो अपने आप में किसी आइसोलेशन में नहीं है, वो सनातन के ही सिद्धांत हैं। प्रभु श्री राम के सिद्धांतों को ही गांधी जी ने राजनीतिक स्वरूप दे के मॉडर्न पॉलिटिक्स में इस्तेमाल किया, और उसका असर भी सबने देखा कि आज तक भी पूरे विश्व में शायद एक ही ऐसा व्यक्ति है जिसको पूरा विश्व इनके सिद्धांतों को आज भी मानता है, और आगे आने वाले कई पीढ़ियों तक गांधी जी के सिद्धांत शाश्वत रहेंगे, सनातन रहेंगे। और उसमें ये विषय चुनना अपने आप में साहस का भी काम है, आसान नहीं है जल्दी से, वरना लोग सोचते हैं फिल्म बना ही रहे हैं तो ऐसे ही बना लो कि क्विक मनी हो जाए, फटाक से बिक जाए, उसके बाद उसका विषय कुछ भी हो। तो इस कैश के चक्कर में आप नहीं पड़े कम से कम फिल्म बनाते हुए, ये पक्का है। बहुत शुभकामनाएं इस फिल्म के लिए, और बहुत सफलता मिले सभी कलाकारों को। युवा कलाकार हैं, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और माँ जगदम्बा की कृपा बनी रहे, खूब यश मिले, खूब प्रशंसा मिले, और माँ शारदा की कृपा से आपकी कला, आपका नाट्य, ये सब बहुत बढ़ता ही चला जाए। पुनः बहुत शुभकामनाएं। मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बधाई, बहुत अभिनंदन, बहुत आभार, और अनुमति लूँगा विजय जी से कि अभी जाऊँगा मैं फिर, लेकिन जब भी इस फिल्म का कोई और कार्यक्रम होगा तो ये प्रार्थना है कि मुझे जरूर बुलाइएगा। बहुत आभार। जय श्री राम। धन्यवाद माननीय मंत्री जी का, जिन्होंने वर्तमान समय में कला और साहित्य क्या भूमिका अदा करता है। देवियों और सज्जनों, कला और साहित्य आप सब जानते हैं कि समाज का दर्पण होता है। समाज के लोगों के, उनके विचारों को, उनकी भावनाओं का सिंचित प्रतिबिंब होता है। सिनेमा कला जगत का समाज निर्माण में एक बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। अब जब भारत जबकि 2047 तक विकसित होने का सपना देख रहा है, तो कहीं न कहीं कला जगत और समाज सुधार के क्षेत्र में जो जुड़े हुए लोग हैं, उनकी भागीदारी भी बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। माननीय मंत्री जी ने जो विजन शेयर करे, कला संस्कृति मंत्री भी हैं, इनके विचार हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। समाज को कैसे एक नई दिशा दी जाए कला के माध्यम से, फिल्म के माध्यम से। बड़े साइलेंटली दिखाएंगे, लेकिन उनकी पूरी फिलॉसफी, उनकी टीचिंग्स, उनकी थिंकिंग के बारे में बताया जाएगा। तो आई वॉज रियली फैसिनेटेड बाई दिस। सरोज जी लेके आए थे सिन्हा जी को मेरे पास, और फिर हेमंत जी से जुड़े हम, और फिल्म का स्वरूप लेना शुरू कर दिया। एंड दैट्स हाउ वी आर हियर। अब सरोज जी ने और हमारे संजीव जी ने सबको आपको बता ही दिया इस फिल्म के बारे में। मैं कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपसे, बस आपका आशीर्वाद चाहिए सबका। आप फिल्म देखेंगे, उम्मीद करता हूँ अच्छी लगेगी। थैंक यू सो मच। कार्यक्रम को विजय जी के आदेश से पूरा किया। मैं इन सब का बहुत ही इस्तकबाल करता हूँ। विजय जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ, और हेमंत जी और संजीव जी को बहुत दिल से मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू। राम शर्मा जी मौजूद हैं। मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि कृपया आएँ और आप बताएं कि ये मूवी जो है किस तरीके से लोगों को नैतिक मूल्यों से जोड़ती है, समाज को एक नई दिशा दिखाती है। अहम शर्मा जी, कुछ शब्दों में अपनी बात को समाप्त करने को अच्छा रहेगा। आप सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। फिल्म के बारे में काफ़ी कुछ कहा जा चुका है पहले ही। कहते हैं फिल्म समाज का आईना होती है, और समाज को उसी तरह से इन्फ्लुएंस भी करती है। तो हमारी थोड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम ऐसी फिल्में बनाएं जिससे कुछ हद तक सही मूल्यों को इम्बाइब कर सकें, लोग फिल्म देख के उससे इंस्पायर हो सकें, कुछ सीख सकें। एट द सेम टाइम अगर सिर्फ वही देखेंगे तो फिल्म प्रीची हो जाएगी। एक एंटरटेनमेंट कोशेंट और इस तरह से फिल्म बननी चाहिए कि
सकारात्मक रूप से बात कही भी जा सके, एट द सेम टाइम एंटरटेन भी हो सकें लोग। तो हमारी फिल्म कुछ उसी तरह की फिल्म है जिसमें सस्पेंस और थ्रिल के माध्यम से कश्मकश, जैसा इसको कश्मकश पढ़ें या कैश में कैश पढ़ें, दोनों ही चीज़ें एप्लीकेबल हैं। कैश के पीछे दुनिया भागती रहती है, लेकिन क्या वही अंतिम सत्य है? किस हद तक आप अपनी मूल्यों के साथ समझौता करेंगे उस कैश के पीछे भागने में, और कैसे नौजवान खो देता अपने आप को सिर्फ उसके पीछे भागने में। इसी तरह इसको ध्यान में रखते हुए एक कहानी बहुत खूबसूरत मनोरंजक तरीके से पिरोई गई है, इस मूल्य के साथ कि सिर्फ वही काफ़ी नहीं है। बार बार गांधी जी का चरखा आगाह करता है कि ये काफ़ी नहीं, इस तरह की कहानी है। बहरहाल फिल्म के बारे में कहा जा चुका है, मेरा किरदार बहुत अनूठा मुझे लगा। इसमें जो द्वंद्व है हम सबको हमेशा जब छोड़ता है, क्या सही है क्या गलत, टू बी नॉट टू बी, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो उसमें जो आदमी सही फैसला ले पाता है वो लाइफ में सही राह पे आगे बढ़ पाता है, अपनी मंजिल को पाता है और पीसफुल भी रह पाता है, अपने आप के साथ सुखी रह सकता है। तो क्या मेरा किरदार वो अचीव कर पाता है फिल्म में? यही कहानी, मतलब हर किरदार इसी ज़रिए अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं और कहानी अनफोल्ड होती है। बस इतना काफ़ी हो बताना, बाकी पूरी फिल्म नहीं तो कह जाऊँगा मैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, गुड डे, थैंक यू। साई तम्हानकर जी हैं, आदर्श बारिक, पल्लवी सिंह जी हैं, गोविंद पांडे जी हैं, दुर्गेश कुमार, सिद्धांत गोयल जी हैं, रूने तमते जी हैं और यश जी हैं। अब इसके अगले जो किरदार हैं, मैं गुजारिश करूंगा पल्लवी जी से कृपया आएँ, और इसकी एक्ट्रेस हैं पल्लवी जी। सभी को नमस्कार। हर दिन उभरता सितार। अब मैं गुजारिश करूंगा अजीत सिन्हा जी से कि आज हमारे बीच जो मेजर जनरल पुनिया साहब हैं उसका भी सम्मान करें। मेजर जनरल पुनिया साहब से रिक्वेस्ट है कृपया मंच पर। नमस्कार। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि मुझे इस फिल्म के साथ जुड़ने का मौका मिला। आज के कार्यक्रम को लेकर कश्मकश आए थे, अजीत सिन्हा जी डायरेक्टर को साथ में लेकर, तब मुझे आश्चर्य था कि मेरे को इस फिल्म के साथ कैसे जोड़ा जा रहा है। फिर मुझे बताया गया कि इसके अंदर गांधी जी हैं और मैं गांधी स्मृति का वाइस चेयरमैन हूँ, चेयरमैन हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। इनकी इच्छा तो ये थी कि 2 अक्टूबर को ही इसका फिल्म का पोस्टर जारी कर लिया जाए, पर 2 अक्टूबर को हमारे यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना था। कल वे आए थे, पर वो दोनों से मिले, अजीत जी से भी मिले और हेमंत जी से भी मिले हो जाके, और उनको फिल्म के बारे में भी बताया गया कि गांधी जी के ऊपर ये फिल्म आ रही है। और बिल्कुल ठीक है फिल्म। इससे पहले मैंने मुन्ना भाई MBBS देखी थी, वो भी गांधी का एक मैसेज देती थी। मंच पर अहम बैठे हैं, पल्लवी हैं, सबसे ज़्यादा तो मैं इनका फ़ैन हूँ, राजपाल यादव जी का। देखिए, आदमी अगर 5 फुटा भी हो पर उसके अंदर कला हो तो वो कहीं का कहीं पहुँच सकता है। देखिए आप देखिए ना, गंभीर रोल से लेकर कॉमेडी से रोल से लेकर, और मैं ये हृदय से बात कह रहा हूँ, मैं जब भी अगर उसमें राजपाल यादव हैं तो मैं समझता हूँ फिल्म देखी जा सकती है, पैसा वसूल हो सकता है। बहुत प्यारे इंसान हैं, डाउन टू अर्थ हैं और अपनी मेहनत से बढ़े। आप भी NSD में, ये भी NSD के स्टूडेंट्स रहे हैं। अजीत सिन्हा जी ने तो पहले भी आज और कई फिल्मों का निर्देशन किया है। आदर्श बैठे हैं, नए अपकमिंग आर्टिस्ट हैं उधर। गांधी जी को लोगों ने बहुत समझा नहीं जाके, और ये बिल्कुल ठीक बात है। गांधी के ऊपर रिसर्च होगी, सिम्पोजियम्स होंगे, उनकी म्यूजियम्स होगी, उनकी एग्जीबिशंस लगेंगी, उनके बारे में बात की जाएगी, भाषण होंगे, पर गांधी को फॉलो करने वाले लोग उतने नहीं हैं आगे कि गांधी को लोग फॉलो करें आगे। और गांधी को फॉलो करना कोई मुश्किल बात नहीं है। जो जैसे हमारे पुराने काल के अंदर जो संस्कार, जो शिक्षाएं हमको सिखाई गई हैं, वही बात महात्मा गांधी ने की। गांधी ने कुछ नया नहीं किया, पर गांधी ने जो नया किया वो किया त्याग, सेक्रीफाइस।
अगर सेक्रीफाइस है तो सब कुछ है, वो हमको आज सिखाने की जरूरत है। सेक्रीफाइस है तो आदमी मोह माया के ऊपर इतना भागता नहीं। भाषण करना इतना सरल नहीं होता। जब मैं बोलता हूँ तो वही लाइन मेरे अंदर जाती है कि विजय गोयल जो तुम बोल रहे हो उसको तुम फॉलो कर रहे नहीं कर रहे जाके। और ऑडियंस भी आजकल बड़ी चतुर है जाके, जो हम बोल रहे हैं 2 मिनट में गूगल करके देख लेती है इसके जीवन में है क्या, जाके कितनी कंट्रोवर्सीज हैं, कितने स्कैंडल हैं, कितने नहीं हैं, वो 1 मिनट के अंदर देख लेती है। तो इसीलिए आदमी वही बोल सकता है जिसको वो फॉलो करता है जाके। मुझे फिल्मों का बहुत शौक है जाके, और केवल शौक ही नहीं है, देखने का तो बहुत शौक है ही। मैं तो शूटिंग घंटों घंटों बचपन में देख लिया करता था, और बनाने का भी बड़ा शौक था। एक भी बना नहीं पाया जाके, हो सकता है इनके साथ ही सहयोगी बनूंगा जाके, कम से कम उसकी आर्ट, उसकी कला को देखने का एक मौका मिल सकता है। और बड़े गौर से चीज़ें हैं, और बिल्कुल ठीक कह रहे थे अभी कपिल जी कि जो फिल्में जिस तरह से मैसेज दे देती है जाके, वैसा मैसेज और किसी चीज़ से नहीं जाता। पहले तो ये हमारी दिल्ली जो है, बोलूं, दिल्ली हमारी शिक्षण भूमि है। दिल्ली से मैंने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में 94 से 97 पढ़ा हूँ। ये एरिया हमारे लिए हमेशा एक शिक्षण धाम के रूप में, विश्वास करिए पूरे संसार में इतना पढ़ने का मौका मिला कि हाफ सेंचुरी में 500 चरित्र जीने का 10-11 साल की उम्र से लगातार अभिनय अभिनय अभिनय, कभी नुक्कड़ पे, कभी मंच पे, कभी टेलीविज़न पे, तो कभी किसी के दरबार में, तो किसी फिर कभी, और फिर 70 mm पे, फिर देश दुनिया की सब मिला के लगभग हाफ सेंचुरी में 500 चरित्र जीने का सौभाग्य मिला। और मुझे लगता है मैं डेली अपने आप को बोलता हूँ कि मेरी हाइट 105 फीट 2 इंच। सर हम बराबर हैं? हम बराबर नहीं हैं, हम 1000 लोगों में भी हम बड़े दिखते हैं। वैसे बड़े हैं। हाइट, मैं बहुत गंभीरता से बोलता हूँ कि तेंदुलकर साहब ने अपनी हाइट बचपन से पहचान ली थी, तभी वो सर्वश्रेष्ठ भारत रत्न हो पाए क्रिकेट में। और हमने अपनी हाइट को, जब मैं 5-7 साल का था तो मेरी अम्मा ने बता दिया था कि मेरा बेटा 100 फीट का है, 5 फीट 2 इंच मेरे दिखते हैं, लेकिन मेरी जेन्युइन हाइट बिलीव करो 105 फीट 2 इंच मैं हर समय लेके चलता। ठीक है। दूसरी चीज़, खूबसूरती में मैं सबसे आगे रहना चाहता हूँ। मैं बचपन से मान के बैठा हूँ कि दुनिया का हैंडसम अगर 5 आदमी होंगे तो राजपाल यादव मैन ऑफ द मैच। अच्छा, इस दुनिया में अगर हाइट हो गई और एक सुंदरता हो गई, तो जो आदमी हाइट की अच्छी कल्पना कर सकता है, जो फाइट की अच्छी कल्पना कर सकता है, और जिसमें सुंदरता की कल्पना कर सकता है, तो बिलीव करिए जितना एक अभिनेता 10 घंटे। सर सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन देते हुए। हाँ, नमस्कार, मैं गोविंद पांडे हूँ और मैं उत्तराखंड से हूँ वैसे, पर दिल्ली में पैदा हुए, दिल्ली में पढ़े लिखे और यहीं से डॉक्टरेट की थिएटर सब्जेक्ट में। और मैं NSG रेपेटरी कंपनी में रहा 10 साल, ए ग्रेड आर्टिस्ट। 2007 से मैं फिल्म, वेब सीरीज, सीरियल्स कर रहा हूँ। अभी बहुत सारी फिल्में आई, बैंड बाजा, PK फैन, रश लंका और विक्रम वेदा, धड़क, मिशन रानीगंज, कटहल, अभी नेशनल अवार्ड मिला है। और बहुत सारी वेब सीरीज आई। अभी आजकल एक बहुत हिट वेब सीरीज चल रही है जियो हॉटस्टार पे, ठुकरा के मेरा प्यार। तो उसमें जो एक टाइप, मतलब रियल स्टोरी पे। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको क्या चीज उसमें ज्यादा अच्छी लगी, इसकी वजह से? नहीं, अभी तो बन नहीं है ये फिल्म, तो अभी तो स्क्रिप्ट तो सुनी होगी। हाँ, स्क्रिप्ट सुनी है, तो फिल्म बहुत अच्छी है यंग जनरेशन के बारे में। और सबसे अच्छी बात क्या है कि पैसे के पीछे जो हर किसी की लालसा रहती है ना, और आजकल ज़्यादा हो गया। ऐसा नहीं कि पहले पैसे की ज़रूरत नहीं थी या अभी के लोगों को ज़रूरत है, ऐसा नहीं है। पैसा तो जो है हमेशा जो है हर किसी की ज़रूरत बना रहा है, और सबको पाने की इच्छा रहती है और पाना भी चाहिए। मगर उसके तरीके क्या क्या होते हैं, और उसके तरीके गलत हैं या सही, तो यही मूल्य आधारित होते हैं कि भाई गांधी उस वक्त प्रासंगिक गांधी थे, या आज के संदर्भ में अगर हम बात करें कि क्या हम गांधी के लिए प्रासंगिक हैं, यही मुद्दा है इसमें, इस फिल्म में। तो इंटरेस्टिंग है। और ये हम अगर रियल लाइफ में भी बात करें कि क्या गलत है क्या सही है, अब अगर हम कोई गलत स्टेप उठा लेते हैं किसी भी चीज़ को पाने के लिए, किसी भी इच्छा को पाने, कामना के लिए, किसी भी प्रकार की, अगर हम सही तरीके से जाते तो हमें उसका रिग्रेट नहीं होता।
और अगर हम गलत तरीके से जाते हैं तो एक वक्त पे आके वो हमको तंग करता है और वही हमारा पाप बन जाता है और वही जीने नहीं देता और वही हमारे मौत का कारण भी बनता है। उसको जो समझ जाता है तो वो समझ जाता है, उसकी ज़िंदगी सही सरल हो जाती है। जो नहीं समझता तो फिर उसी मृगरिचिका में अपना जीवन खो करके खो देता है, चला जाता है दुनिया से। आपके लिए जब भी आप स्क्रिप्ट सुनते हैं तो आपके लिए क्या मायने रखता है, आपका कैरेक्टर या फिल्म की स्क्रिप्ट? नहीं, मेरा अपना पर्सनल कैरेक्टर तो कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि हम तो अलग अलग प्रकार के काम करते हैं। गोविंद पांडे वो जो भी कैरेक्टर हम कर रहे हैं तो वो हो नहीं सकता। जैसे कि मैंने नेगेटिव रोल मुझे देते हैं लोग तो मैं करता हूँ, मगर रियल लाइफ में तो मैंने कभी किसी का क्या बताऊँ, मैं किसी बच्चे को भी जोर से नहीं बोला होगा या कभी किसी चिड़िया को भी नहीं उड़ाया होगा गुस्से से। हाँ। सर, आपने जितनी भी वेब सीरीज की हैं, आपकी उसमें फेवरेट कौन सी है? अभी चल रही जियो हॉटस्टार पे, हालांकि फर्जी भी बहुत अच्छी लगी मुझे, ह्यूमन में भी बहुत अच्छा काम था सैफ शाह वगैरह के साथ। मगर अभी जो जियो हॉटस्टार पे बहुत ही प्यारा ठुकरा के मेरा प्यार जो चल रहा है, बहुत हिट चल रही है वो तो, और बहुत प्यारे ढंग से बहुत रियलिस्टिक जोन में जाके कि वो फिल्म बनी, वेब सीरीज बनी है, जिसके कारण शायद पूरे हिंदुस्तान में वो पसंद भी की जा रही है। तो वो मुझे कैरेक्टर चौहान का बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा आप कैरेक्टर जो भी कैरेक्टर करते हैं तो क्या मतलब कि सोच के क्या पहले से ही सोचते हैं कि मुझे ऐसा कैरेक्टर करना है, या प्रोड्यूसर या डायरेक्टर नहीं, जो स्क्रिप्ट मिलती है हमको, हाँ। अब अभी जैसे कुछ कैरेक्टर तो हमको नहीं पसंद आए या वो मुझे नहीं करने चाहिए तो हम नहीं करते वो, मगर जब हाँ कर दिया और रोल पसंद आ गया, कैरेक्टर पसंद आ गया, तो फिर वहाँ से फिर हम उसकी तैयारी में लग जाते हैं। जी।